دیگر اپڈیٹ شامل کرے وزیراعظم عمران خان کا ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ، آرمی چیف اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ تھے۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے استقبال کیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم کو ملک کی سلامتی، افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے قومی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ISI کی کوششوں کو سراہا۔ عمران خان نے پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جانے والی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا۔ عام ترین دورے سے متعلق آپ کو آگاہ کرے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ آرمی چیف اور وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ایسے میں ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم کو ملک کی سلامتی، افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برطانیہ لے آئی، کسی نے راستے میں پوچھا تک نہیں۔ حریم شاہ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں متنازع ٹک ٹاکر نے پاکستانی کرنسی اور پاسپورٹ کی بھی توہین کی۔ برطانیہ پہنچتے ہی بولی کہ پاکستانی کرنسی اور پاسپورٹ کی کہیں کوئی وقت نہیں۔ دوسری جانب FIA نے اس کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ FIA حکام کے مطابق برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی خط لکھ کر کارروائی کی درخواست کی جائے گی۔ غیر ملکی کرنسی بڑی تعداد میں لے کر برطانیہ آئی، کسی نے نہیں پکڑا۔ متنازع ٹک ٹاکر حریم شاہ نے نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ ویڈیو میں بڑی تعداد میں کرنسی نوٹس دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا پاکستان میں قانون صرف غریب کو پکڑتا ہے۔ پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ پکڑتے ہیں، تو جتنے بھی وہ ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیے۔ حریم شاہ ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان سے UK اتنی بڑی رقم لے کر آئی، پاکستانی پیسے اور پاسپورٹ سمیت کسی چیز کی وقت نہیں۔ پاکستان سے میں ہیوی اماؤنٹ لے کر UK آ رہی تھی، لنڈن آ رہی تھی۔ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری جانب FIA نے ٹک ٹاکر کے خلاف فورن ایکسچینج قوانین کے تحت منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی۔ FIA حکام کے مطابق برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی خط لکھ کر کارروائی کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ حریم شاہ کی سفری دستاویزات کے مطابق اس کا اصل نام فضا حسین ہے۔ اس نے 10 جنوری کی رات کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دوحہ کے لیے سفر کیا تھا۔ حریم شاہ نے بھاری مالیت کی کرنسی کیسے بیرون ملک منتقل کی؟ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے پر FIA حکام نے حریم شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نسیم عادل سے۔ جی نسیم۔ دیکھیں، معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کی ویڈیو منظر پہ آنے کے بعد حریم شاہ کے ویزے، امیگریشن اور سفری دستاویزات کی جو تمام تفصیلات ہیں وہ FIA حکام نے حاصل کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ خاتون کے خلاف فارن ایکسچینج قوانین کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی اس طریقے سے کرنسی منتقلی میں منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے اور حریم شاہ کے خلاف انکوائری درج کر کے FIA نے باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کر دیا ہے۔ تحقیقات میں پاکستان کسٹم اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس سے بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں کہ حریم شاہ اگر ایئرپورٹ سے گئی ہے تو اس کے پاس اتنی خطیر رقم تھی یا نہیں تھی۔ تمام جو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جو اسکیننگ کی جاتی ہے وہاں سے بھی تمام جو ہے وہ معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ جی، وزارت خارجہ کے کانفرنس روم میں ویڈیو بنائی، وہاں تک کیسے پہنچی؟ آج تک حقائق سامنے نہیں آئے۔ کئی نامور سیاستدانوں کے ساتھ ویڈیو منظر عام پر آ چکی۔ چند برسوں میں کئی بار حریم شاہ تنازعات کا شکار رہے، لیکن کبھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کبھی پارلیمنٹ کے دروازے کو ٹھوکر، کبھی مفتی کوی کو تھپڑ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دھمکیاں، تو حکمرانوں کا کچا چٹا کھولنے کی تڑیاں۔ ایک ٹک ٹاکر نے جب چاہا ملکی سیاست کا ڈرامہ بنا دیا۔ پارلیمنٹ کا تقدس پامال کرنے کی کوئی سزا نہ ملی تو حریم شاہ شیر ہو گئی۔ ٹک ٹاک ویڈیو کے لیے ملکی وقار کو داؤ پر لگا دیا۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک پر فیٹف کی تلوار لٹک رہی ہے، حریم شاہ نے پاکستان سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برطانیہ لے کر جانے کا دعویٰ کر دیا۔ ویڈیو میں پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی کرنسی کی برملا توہین کرتی رہی۔ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آج کل کی بات نہیں، حریم شاہ کئی برسوں سے ایک کے بعد ایک
नया तनाजा खड़ा करती हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में मटर गश्त, वजीर आजम और वजीरों के साथ सेल्फियां, शेख रशीद की वीडियो लीक का मामला हो या सिंध के वजीर से शादी का झूठा ड्रामा, हरीम खबरों में इन रहने में हमेशा कामयाब रही हैं। मुतनाज़ा टिकटॉकर को अब के बार कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। बैरून मुल्क पहुंचकर पाकिस्तान की तौहीन करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद ने मुतालिबा कर दिया। FIA ने NCA को हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखने का फैसला किया है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक कैसे तहकीकात करनी है और जुर्म साबित होने पर मुल्जमान को क्या सजा हो सकती है, जानेंगे ब्यूरो चीफ लंदन कौसर कासमी से। जी कौसर, बताइएगा क्या है प्रोटोकॉल? बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़े सख्त कवानीन हैं। अगर आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट होती है जी, तो उसके हवाले से भी बैंक आपसे सवाल करता है कि ये जो पैसा आप डिपॉजिट करवा रहे हैं ये किस चैनल से आपको मिला है। तो बाकायदा तौर पर बैंक को भी आपको सबूत देना पड़ता है, खा वो कलील तरीन कैश आप बैंक में जमा कराएं। जिस तरह हरीम खान की एक फुटेज सामने आई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगती है, वो जो अपनी वीडियो में दिखा रही हैं, उसके हवाले से बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी या दीगर जो इदारे हैं वो बिल्कुल उनसे पूछ सकते हैं कि किस चैनल से ये पैसा आपके पास आया। अगर उनके पास कोई बैंक की रसीद पाकिस्तान से किस तरह वो यहाँ पर ले के आई, इसके हवाले से कोई सबूत मुयस्सर ना हुआ तो यकीनी तौर पर बरतानिया में उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जिस तरीके से शो ऑफ किया उन्होंने फुटेज में, यकीनी तौर पर वो फुटेज बरतानवी इदारों तक अब तक पहुंच चुकी होगी और मुझे ये उम्मीद है कि उनसे इस हवाले से ज़रूर सवालात किए जाएंगे। अगर किसी भी किस्म का कोई सबूत देने में हरीम खान नाकाम हुई बरतानिया में तो उनके खिलाफ यहाँ के कवानीन के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरतानिया ले आई, किसी ने रास्ते में पूछा तक नहीं। हरीम शाह ने यह दावा किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई है। हरीम शाह हमारे साथ खुद लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया हरीम। हरीम, आप अजराए मजाक ये सारी बातें करती हैं कि इस बातों में कोई सदाकत होती है? आपको अंदाजा है कि आपकी इन बातों से पाकिस्तान के इमेज को क्या नुकसान पहुंचेगा? जी देखें, मुझे बिल्कुल पता नहीं था और अंदाजा भी नहीं था। और पहली बात जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुझे लफ्ज़ का भी नहीं पता और इसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है कि होता क्या और किस तरह किया जाता है। एक तो ये कि मेरे यहाँ यूपी में भाई हैं दनियाल मलिक, मैं उनके ऑफिस में थी और इस तरह एक उनका ये काम है मनी वगैरह का, और इस तरह जो मेरे आगे अमाउंट वगैरह पड़ी हुई थी तो वो कोई इलीगल नहीं थी, वो लीगल थी। और मैंने जस्ट ऐसे ही वीडियो बनाई थी मजाक में आगे रख के फन में, तो मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो इतना लाइक वो होगी, वायरल होगी और इस तरह लोग इसको दूसरा रोक देंगे। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि मैंने फन में बनाई, फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसको अपलोड किया, फिर अपने अकाउंट से मैंने उसको डिलीट कर दी जब मुझे पता चला कि ये लाइक मुझसे गलती होगी, ये मुझे नहीं बनाना चाहिए था। तो मैंने फौरन से रिमूव कर दिया। रिमूव करके फिर जो सच थे, ये जो हकायक थे, ये जो सदाकत थी, वो मैंने मीडिया चैनल पे आके क्लियर भी किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने मुझसे गलती होगी, मैंने फन में ऐसा किया था। और जहाँ तक इदारों की तहकीकात की बात है, बिल्कुल जो भी इदारा तहकीक करेगा मेरी कोऑपरेशन उनके साथ है, शौक से करें। जब ऐसा कुछ है ही नहीं, सच पूरी पब्लिक के सामने, अवाम के सामने आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जस्ट एक फन था। अच्छा, आपने इस फन में अपने अल्फाज के चुनाव का भी ख्याल नहीं रखा? पाकिस्तान में गरीब पकड़े जाते हैं, देखे मैं एयरपोर्ट से निकल के आई हूँ इतना पैसा लेके। एक सेकंड नहीं, मुझे सवाल करने दे। आपने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोला आपको सोशल मीडिया के उन्हीं अकाउंट्स पर जाकर माफी मांगनी चाहिए, तरदीद करनी चाहिए कि मैंने बेवकूफ़ी की है, मुझे माफ कर दें। आप ऐसा समझती हैं कि आपको ऐसा करना है? देखिए, मैंने बिल्कुल बोला, मैंने कहा मुझसे गलती हुई है, मैंने वीडियो को प्राइवेट कर दिया, मैंने वीडियो को रिमूव कर दिया है। और अल्फाज के चुनाव में भी अगर आप कहते हैं तो वो गलत हो सकते हैं मेरे। और अगर मैंने ऐसा कुछ भी बोला जिससे मीडिया की या किसी भी की दिलदारी हुई या किसी को भी हर्ट की है, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ और मैं माजरत करती हूँ। अच्छा हरीम, आप समझती हैं अब पाकिस्तान के तो खैर बहुत छूट है क्योंकि अपना ही माल है पाकिस्तान, इसकी खैर है। बरतानिया के कवानीन बहुत सख्त है, आपको ये पैसे भी जस्टिफाई करनी है, आपको ये जुमले भी जस्टिफाई करने हैं। एयरपोर्ट से, पाकिस्तान के एयरपोर्ट से कैसे निकली, फिर बरतानिया के एयरपोर्ट से कैसे बाहर आई, उसको आप जस्ट फॉर फन कहेंगी? मेरा सवाल बेसिक आपसे ये है। जी जी, देखें, अमाउंट जो मेरे पास है वो मैं क्लियर कर लूंगी कि वो अमाउंट जो है लीगल अमाउंट है और जिनके ऑफिस में उन्होंने वीडियो बनाई है वो मेरे साथ हैं और वो चीज़ को डिक्लेयर कर देंगे। वो पैसा इलीगल नहीं है और वो कोई वो नहीं है, वो जिस ऑफिस के अंदर बनाई हुई है, जिस टेबल पे मैंने बैठ के बनाई हुई है, जिन पैसों के साथ मैंने बनाई हुई है, वो मैं डिक्लेयर कर दूंगी। उस चीज़ से मैं खारिज नहीं हूँ। वो मैं चाहे बरतानवी हुकूमत को या किसी को भी करना होगा या
कुछ भी करना हुआ। तो जहाँ तक आप कहते हैं कि इमिग्रेशन में लीगल तरीके से आई हूँ, मैं लीगल वे से आई हूँ। मैं पाकिस्तानी इमिग्रेशन में, कतर इमिग्रेशन में 2-3 इमिग्रेशन क्लियर करके जो लीगल वे होते हैं उससे आई हूँ। और मैंने हमने ये नहीं कहा कि आप इलीगल गई हैं हरीम। मैं बेसिकली ना जिस पॉइंट को, जिस आपको शायद अंदाजा ही नहीं है ना आपकी इस गुफ्तगू की टेंडेंसी क्या है। फेटफ की पाबंदियां पाकिस्तान के सर पर हैं, ऐसे मौके पर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा सवालिया निशान उनकी तरफ से है। मुझे पहले सवाल कंप्लीट करने दे, मेरी बात सुने। आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, इधर टिकटॉक है, इधर स्मैक है और या कुछ भी है, आपने उन सब में ये वीडियो चढ़ाई, फिर उसको प्राइवेट कर दिया। पाकिस्तान की इतनी बड़ी आवाम नहीं है कि टीवी चैनल्स देख रही है, क्या आप उन तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर जाकर इस बात की, इस खबर की दोबारा तरदीद करेंगी जो वीडियो पैगाम आपने दिया कि मैं गलत थी, मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने पाकिस्तान का इमेज नादानस्तगी में खराब हुआ? देखिए, अगर एक इंसान से गलती होती है तो फिर उसको तस्दीक करनी चाहिए। उसी प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं कर रही जाके जहां से गलती हुई है? उस प्लेटफॉर्म पर जाके आप गलती की तस्दीक करें ना जिस प्लेटफॉर्म पे आपने गलती की है। तो बिल्कुल, मैंने इस चीज से तो मैंने इनकार नहीं किया कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से या मैं माजरत नहीं कर सकती, या मैं जाके वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, या मैं वो नहीं कर सकती, ये मैंने बात ही नहीं की। अभी आपने मेरा पेपर लिया तो मैं, मतलब जो मीडिया चैनल जिसने भी लिया या कभी भी ऐसा होता है तो मैं तो मतलब फाइन इनफ, आपकी बात हमने सुन ली जी हरीम, हमने आपकी बात सुन ली, आपकी बात हम समझ भी ली। हमने एक बार फिर मार्जिन दे दिया कि आपसे बेवकूफ़ी हुई, आपसे मिस्टेक हुई। हरीम, आप मुस्तकबिल में भी, क्योंकि माजी में भी ये होता रहा है, पार्लियामेंट के दरवाजे को ठोकर मारना, वजारत खारजा की बिल्डिंग के अंदर चले जाना, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो आपकी नज़र में बहुत बेहतर होगा। आप कुछ इन फ्यूचर कुछ थोड़ा सोच के समझ के कुछ तरह का इरादा रखती हैं कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जितने भी व्यूवर्स आपके हैं, फॉलोअर्स आपके हैं, मुझे थोड़ा ध्यान करना चाहिए? या ऑफ कोर्स, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और इंसान, हर एक इंसान से गलती हो सकती है। तो अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। मुझे पता चल गया, अब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मुझे इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मुझे नहीं, इस चीज़ का भी नहीं पता था कि ये कोई इलीगल पैसा होता है और ऐसे होते और ऐसे होते हैं। बस इस चीज़ के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था। हाँ, ये कि मैंने इस गलती से बहुत कुछ सीखा है और इन चीज़ों से मैं सीखती हूँ, वो मेरे लिए बहुत बेहतर होता है। आखिर में एक शॉर्ट क्वेश्चन, क्या इससे पहले आप कभी बर्तानिया गई हैं? जी, ये मैं सेकंड दफा आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप उन तमाम प्लेटफॉर्म से इस खबर की तरदीद करेंगी और उसी तरह शद्दोमत के साथ बताएंगी कि किस तरह मिस्टेक हो गई। हरीम, आपने अपना वक्त दिया, हम आपकी माजरत बहैसियत एक मीडिया हाउस के तो कबूल करते हैं, लेकिन पब्लिक के ऊपर भी फैसला होना बाकी। आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। पावर अपनी मर्जी चला ले, ख्याल रुकने का दिल से निकाल ले। पावर अपनी मर्जी चला ले, चिराग जलता है अब तेरे हाथ में, रुकना है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद कर दिए जाएंगे, फैसला कल होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास कल तलब किया गया है। इजलास की सदारत वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद करेंगे, जिसमें तालीमी इदारों के हवाले से मुल्क भर में बढ़ते केसेस का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत गिराने का मिशन है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस दूसरे चैलेंजेस भी सामने हैं, लेकिन मिनी बजट मंजूर कराए जाने का इम्कान कभी नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कर पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया। अरकान की तादाद पूरी करने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी अरकान कौमी असम्बली को इशाइये पे बुला लिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, अब फैसले खाने की टेबल पर होंगे? जी बिल्कुल, हमेशा से फैसले खाने की टेबल पर होते रहे हैं। जब भी हुकूमत को अरकान की जरूरत पड़ती है और वोट कम होते नजर आते हैं तो उस वक्त वज़राए आला की ड्यूटियां लगाई जाती है। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा संजीदा लगता है, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी कहा गया है कि वो भी अपने अरकान कौमी असम्बली को खाना दें। उन्होंने भी खाना दिया हुआ है KPK हाउस में, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो इस तरह तमाम अरकान जो है उनके वज़राए आला के जरिए और खुसूसन उनकी स्कीम्स के जरिए, उनके वादे वईद, इस तरह तादाद पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया जिसमें इत्तेहादी जमातें भी शरीक होंगी, और इस बात का कभी इम्कान है कि हुकूमत अपने फिगर पूरे कर लेगी और कल जो है वो मिनी बजट मंजूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अली शेर।
2 साल में इमरान खान की आमदनी में इतना ज्यादा इजाफा कैसे हो गया, बताया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिया। कौमी असम्बली इजलास में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी के जियाले 27 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और हुकूमत का बिस्तर गोल कर देंगे। जो किसी और के सहारे हुकूमत बनाते हैं वो अवाम की बजाय IMF की बात ही मानते हैं। हर सदी में बहरान आता है, इस सदी का बहरान इमरान खान है। हुकूमत गिराने का मिशन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मिनी बजट, लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मिनी बजट महंगाई का नया तूफान लाएगा। 74 साल में ऐसी नालायक और नाअहल हुकूमत नहीं देखी। फजलुर रहमान बोले, हुकूमत को फौरी रुखसत करने पर गौर 25 जनवरी को सरबराही इजलास में होगा। नून लीग दिवालिया, मईशत छोड़ कर गई। PTI हुकूमत ने सख्त फैसले करके मईशत को संभाला। पाकिस्तान आज भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, जहाँ पेट्रोल, गैस, यूरिया खाद की कीमत दीगर ममालिक से इंतहाई कम है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का दावा। कहा, बिलावल बताएं क्या दूध और शहद की नहरें बहा कर गए? साबिका हुकूमतों ने बिना किसी होमवर्क के बिजली के महंगे मुआहदे किए।